A very warm welcome to one and all, and I hope and wish that you all are hale and hearty and in the best of spirits. Ashwini International School, in association with Heartfulness Institute and Brighter Minds, will be having a series of sessions, that is Rainbow of Joy, a rendezvous with parents. And like this for all our parents, their families and friends. Today, we are privileged to have our chairman, sir, with us. Welcome, sir. We have Mrs. Surabhi from Brighter Minds. She is the national coordinator of Brighter Minds. We also have Mr. Bhavesh Thakkar, who is the coordinator of Heartfulness, Tathawade Center. And we also have our very tiny guest, Radha Rai, who is representing Brighter Minds. So I welcome you all, and I'm very grateful to have you all here today. So in school, we teachers, we are trying to create and design the destiny of our children. Similarly, these series of sessions, which will be for parents, will also be helpful in designing our destinies as parents and as individuals. And hence, it would be very apt to have the launch of the book Designing Destiny, written by Mr. Kamlesh Patel, the Global Guide of Heartfulness. The book Designing Destiny is the second part of the book Heartfulness Way. This book, The Heartfulness Way, was launched by our current president, Mr. Ramnath Kovind sir, and was the #1 bestseller on Amazon. So now I kindly request our chairman sir, Mr. Bhavesh, our little guest Radha Rai, to please unveil this grand charismatic book, Designing Destiny. Thank you, Chairman sir. Thank you, Mr. Bhavesh. Thank you, Radha Rai. So this is all what I had to share. Over to you, Alpana Miss. Thank you, ma'am. Hello, everyone. I am Mrs. Alpana Mohanta, your host for today. With me, we have Mr. Navneet Kaur, your co-host. आज हम सेलिब्रेट करेंगे हैप्पीनेस को और जानेंगे हैप्पीनेस के कुछ सीक्रेट्स. As said, science of happiness lies in our understanding. The secrets of happiness lie in our capacity to expand our hearts. Science of happiness यानी खुशी का विज्ञान. सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, पर क्या सचमुच खुशी को विज्ञान से जोड़ा जा सकता है? खुशी के मायने हम सबके लिए अलग अलग होते हैं, पर इसे पाने के लिए और इसे पाने के बाद जिस मानसिक और शारीरिक बदलाव से गुजरते हैं, आज हम उसके वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे. और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ है हमारे ऑनरेबल गेस्ट for today, Mrs. Surabhi Sahai. She is the founder director of Cognic Excellence Pune. She has done her masters in the technology, having specialization in mobile communication and neuroscience, and has published papers in national and international conferences and journals on the same. A successful woman, entrepreneur with deep interest in Brighter Minds, neuroscience-based cognitive development intervention,
Her organization, Cognic Excellence, she has helped aid the holistic development of numerous children from all strata of the society. She has also been a speaker and presenter in various forums across the country on the topics of importance of cognitive skills in children and on understanding the brain science. As a certified heartfulness and meditation facilitator, Surabhi ma'am has visited various corporate establishments to introduce heartfulness, meditation and its benefits to the employees. Ma'am, we are really privileged to have you today with us on this program. So am I, ma'am. Thank you so much for inviting me and our organization. Thank you so much. Our privilege, ma'am. So we now also have one of our parents, Mr. Ritesh Rai, as our esteemed guest. He has a daughter who is studying in Ashwini International School in UKG. Mr. Ritesh Rai is practicing heartfulness meditation from last 8 years and a trainer for last 3 years. He is currently working with Harbinger Group as a technical lead, having 10 years of experience in IT industry. Welcome to our program, sir. We are really honored to have you here today. Thank you. Thank you to everyone. I now request my co-host, Ms. Navneet Kaur, to continue with today's session. Thank you, Miss. A warm welcome to all. We are also fortunate to have today Mrs. Divashri Verma, a teacher in Ashwini International School, as our guest, who has recently been introduced to the heartfulness meditation practice and practicing it since then. And in our panel of guest invitee, we have Ms. Prajakta Ohal, a student of Standard 10 in Ashwini International School, who has been introduced to heartfulness meditation just a year ago. Moving forward, we now have few Mentimeter questions for our viewers. Before we start the questioning session, I would like to give you some instructions. I request you all to go to mentimeter.com. For this, you have to open your web browser and then type www.mentimeter.com. What is the true key to your happiness? Option A, your family. Option B, success of your children. C, successful career. और D, inner peace. क्या वो आपकी फैमिली है या आपके बच्चे या अच्छा करियर या फिर इनर पीस? Thank you, audience, for answering. And I can see there is variety of answers which I get, as I already said, that खुशियां हमारे जीवन में अलग अलग मायने रखती हैं. अभी मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर जाना चाहूंगी. धन्यवाद, छोटा सा शब्द पर असर बड़ा. क्या हम हमेशा धन्यवाद करते हैं? आइए देखते हैं. Gratitude, I appreciate my life as it happens. Option A, often. Option B, rarely. Option C, sometimes. And option D, as per situation. शायद हम सब सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी जो है धन्यवाद देना भूल जाते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा है, छोटा सा शब्द पर असर बड़ा. अभी ऑडियंस के लिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है. हम सब खुश रहना चाहेंगे. That's the reason comedy is our favorite genre. How is laughter and comedy connected to well-being? Here we have 4 options. Boosts blood flow,
develops immunity, triggers hunger, acts as a stress buster. शायद मुझे इसका आंसर पता है और शायद ऑडियंस भी यही कहना चाहेगी कि इट एक्ट्स रियली एज अ स्ट्रेस बस्टर. खुशी के कुछ पल हमारे सभी टेंशन को दूर कर देता है. यही वजह है कि हम सब खुश रहना चाहते हैं हमेशा. Now let's move on to our fourth question. ये बहुत ही नया है कि हमारे अंदर एक हैप्पी केमिकल भी है, पर आज हम जानते हैं कि वो केमिकल कौन सा है जो हमें खुश रखता है. Which one of these is a happy chemical? Option A, cortisol. Option B, adrenaline. Option C, dopamine. और option D, ginger juice. शायद हम में से बहुतों को ये पता नहीं है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है. तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ. ये जो आंसर है वो है डोपामाइन, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है और हमें खुश रहने में बहुत ही मदद करता है. So excellent response I have received from all our invitees. Thank you so much audience for participating in this Mentimeter questions. Now I request Navneet Miss to kindly forward with the program. Thank you Miss. तो चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक फन एक्टिविटी के माध्यम से. फर्स्ट एक्टिविटी में आपको एक पिक्चर में से वर्ड ढूंढकर बताना है. Hope all are ready to hit the strike. You can write your answers in the chat box. Oh wow, some found the answer so soon. That's really great. Our second activity is a word puzzle. See this word, read carefully for a minute, and start writing the answers in the chat box. Brilliant. So many responses within few seconds. That's amazing. Now let's move forward with our last activity, which is a memory game. I'm very sure that everyone will enjoy this activity a lot. Let's start. We will be sharing one picture with different emojis. You will be given just 1 minute to memorize all emojis, and then you have to write the names of the emojis in the chat box, as many as possible. So let's move forward with our last activity, which is a memory game. I'm very sure that everyone will enjoy this activity the most. Let's start. We will be sharing one picture with you all with different emojis. You will be given just a minute to memorize all emojis, and then you have to write the names of the emojis in the chat box, as many as possible. That's superb. Excellent answers. I now request Alpana Miss to move further with the webinar. थैंक यू नवनीत मिस. अब हम चलते हैं हमारे पैनल मेंबर्स के पास और उनसे उनके कुछ अनुभव शेयर करते हैं और जानते हैं उनके विषय में. सबसे पहले मैं रितेश सर जो हमारे पेरेंट गेस्ट से उनसे पूछना चाहूंगी.
Sir, how do you correlate yourself as a parent and a heartfulness trainer? How your heartfulness practice helped you in parenting? क्योंकि आपकी बच्ची जो है वो अश्विनी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ भी रही है, तो एज अ पेरेंट एंड एज अ हार्टफुलनेस ट्रेनर, हाउ डू यू कोरिलेट योरसेल्फ, सर? सो मैंने जैसा हार्टफुलनेस प्रैक्टिस 8 इयर्स बैक स्टार्ट की थी, और 8 इयर्स बैक आई वाज अ बैचलर, मैं एक बैचलर था। मेडिटेशन जस्ट एक थॉट था कि मुझे जस्ट देखना था करके कि ये क्या होता है, क्योंकि कई लोगों से सुना था और हमारे पुराने समय में भी लोग मेडिटेशन करते थे। तो मुझे कुछ ज़्यादा डीप जाने की इच्छा नहीं थी कि मतलब क्या है, उसके अंदर जाऊं और देखूं। बट मैंने एक थॉट लिया था कि एक बार जस्ट एक्सपीरियंस करूंगा, और शायद मैं 1-2 महीने के अंदर में मेडिटेशन फिर डिसकंटिन्यू भी करूंगा। लेकिन मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत ईजिली और बहुत ही कुछ ही दिनों में अपने अंदर महसूस होने लगे थे। अगर मैं पुराना रितेश जो 8 साल पहले था उसके बारे में बात करूं, तो मेरा एक बहुत ही सीमित दायरा था कि मेरे सिर्फ 3 या 4 ही फ्रेंड होंगे जिनसे मैं बात करूंगा। बाकी फ्रेंड से मैं ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करता था, इवन मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो थे। और उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड क्राइटेरिया था कि मैं सिर्फ जो हमारे स्कूल के या कॉलेज के जो रैंकर्स बच्चे थे हम लोग, उन्हीं से ही मेरी बात होती थी। मैं अपने आप को बहुत ही लिमिटेड पीपल तक ही रखता था। तो लव फैक्टर था अंदर, बट वो बहुत लिमिटेड पीपल के लिए था। तो स्टार्टिंग हमारी मतलब मेरे जब मैं बैचलर था तब कुछ लोगों के लिए था। तो हार्टफुलनेस ने चेंजेस लाना उस समय से स्टार्ट किया था जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और जब फिर शादी हुई तो एक न्यू मेंबर हमारे फैमिली में आया, तो जो मेरी वाइफ थी। तो सेम चीज रहता है, हम तो वही रहते हैं, बट मेडिटेशन जब हम करते हैं तो जब हम अपने लिए बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो पहला मैं खुद, फिर हमारे ऑफिस में जो फ्रेंड्स होते हैं वो, फिर शादी हुई तो वाइफ, फिर उसकी सिर्फ वाइफ ही नहीं जुड़ती है, उसकी फैमिली मेंबर्स भी हमसे जुड़ते हैं। फिर 3 साल के बाद हमारे फैमिली में न्यू मेंबर आया जिसने हमें पेरेंटहुड सिखाया। तो मेडिटेशन ने कैसे बेनिफिट किया, तो मेडिटेशन ने ऑलरेडी मेरे अंदर चेंजेस स्टार्ट कर दिए थे जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन स्टार्ट किया था। शादी हुई तो मेरा एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ चुका था, मेरे अंदर लव फैक्टर आ चुका था, मेरे अंदर टॉलरेंस आ रहा था। और सबसे अच्छी चीज जो मेरे अंदर आ रही थी वो थी बैलेंसिंग द लाइफ। हाउ कैन वी बेटर, कैसे हम अपना लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। एक ऑफिस बीइंग स्टार्ट, हम लोग जॉब करियर करते हैं बहुत छोटी पोजीशन से, स्लोली वो आपका पोजीशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, वो मेडिटेशन सिखा रहा था। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिसीजन मेकिंग। तो फिर जब राधा आई हमारे दुनिया में तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इजीली वहां पे और पता चलने लगा कि कितना प्यार करना है, कब प्यार करना है, कब स्ट्रिक्ट होना है, ये चीजें मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम हमेशा अपने बच्चे को फुल ऑफ द टाइम 24 आवर्स प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर हमेशा आप उन्हें उनकी चीजों को मान रहे हो, आप दिन भर उनकी जैसे वो बोल रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हो, तो वो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अभी अगर वो बोलते हैं कि मुझे 2 से 3 घंटा मुझे सिर्फ मोबाइल ही देखना है, तो वो उनकी आंखों के लिए बहुत बेकार है, उनके ब्रेन के लिए बेकार है। तो हमें डिसीजंस बहुत अच्छे होने चाहिए। और सेकंड थिंग, हम जैसा अपने बच्चों को होते हुए देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसा बने, तो वो स्टार्ट होता है कि हम कैसे हैं। अगर हम खुद ही अंदर से पीसफुल नहीं है तो क्या बच्चे पीसफुल होंगे? अगर हमारे अंदर ही प्यार नहीं है तो हमारे बच्चों के अंदर कैसे प्यार होगा? हमारे अंदर प्यार नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा भी हमारे लिए प्यार उसके दिल में हो, उस सोसाइटी के लिए प्यार उसके दिल में हो। तो ये प्यार जो फैक्टर है ये राधा आने से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, और जब वो आई तो उसने और भी चीजें सिखाया। टाइम मैनेजमेंट, पहले आप सिर्फ अपना ऑफिस देखते थे, फिर आपकी वाइफ आई, थोड़ा टाइम आपकी वाइफ को देना पड़ा, फिर राधा आई तो फिर हमें उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। बट
इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा टाइम ही हम एक जगह पे दें। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तो हमें बियर करनी है, बट कितने अच्छे से हम इस चीज को बच्चे के अंदर इन्फ्यूज कर सकते हैं कि हाँ बेटा 8 आवर्स इज फॉर माई ऑफिस। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करते समय कैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कॉल चालू है, उतने में वो अंदर ही आ जाती है। तो हाउ कैन वी टैकल दैट सिचुएशन? ना हम क्लाइंट को अपसेट कर सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को अपसेट कर सकते हैं। दोस थिंग्स बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि कई बार मैंने देखा कि लोगों को कि वो बहुत ही जल्दी जैसे कुछ हुआ नहीं कि वो भड़क ही जाते हैं, फट से जाते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो वो मेरे अंदर काफी हद तक मैंने देखा कि वो कंट्रोल रहता है, सिचुएशन को हैंडल करना, बेटर वे में हैंडल करना। और ऐसा नहीं है कि हमें फुल टाइम बच्चों पे एंगर ही रहना चाहिए, और फुल तो किस समय एंगर होना है, कितना एंग्री पार्ट हमें शो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने सीखा। और मेन चीज जो बैलेंस है लाइफ में, कि हमें कितना समय किस चीज को देना चाहिए और कितने टाइम क्या करना चाहिए, वो हमारा हार्ट हमें गाइड करता है। व्हेन वी डू मेडिटेशन वी बिकम द मास्टर ऑफ अवर हार्ट, और हमारा हार्ट हमें सही डायरेक्शन में सही चीज करने के लिए और सही समय पर करने का हमेशा बताता रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जब राधा का एडमिशन का चल रहा था, तो उस समय कई स्कूल्स में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ अपने वाकर एरिया में। तो अश्विनी स्कूल ही क्यों, अश्विनी स्कूल को चूज करने का एक बहुत ही सिंपल रीजन था कि बच्चों को जो बनना है वो अपने आप वो उनके अंदर रहता ही है, एक हंगर पढ़ने के लिए, बट वो हंगर क्रिएट करना। और सेकंड थिंग मुझे ये ज्यादा मैं सोचता था कि पहले वो इंसान बने, बाकी तो वो डेजिग्नेशन हो। जब हमें जॉब मिल गई, हमने पढ़ लिया, तो बच्चे पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, बट एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक सोसाइटी मेंबर की आज के समय की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। बाकी चीजें तो हम लोग फिर धीरे धीरे करके समय आने पर हम सीखते जाते हैं। तो वो चीजें कल्चर हमने कैसे हम अपने बच्चे में दे सकते हैं, वो मेडिटेशन हमें सिखाता है। क्योंकि हम खुद पहले वैसे बनते हैं, वो प्यार हमारे अंदर आता है, और वो स्लोली वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि हम कितने प्यार से हैं, हम अपने फैमिली में कितने प्यार से हैं, हम उसके साथ कितने प्यार से हैं, हम अपने फैमिली के बाहर सोसाइटी मेंबर्स के साथ कितने प्यार से हैं। सो दे डू ऑब्जर्व अस, और वो फिर वही फॉलो करते हैं। तो पहले हम बदलते हैं मेडिटेशन के थ्रू, और स्लोली जब बच्चे उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उस वाइब्रेशंस में रहते हैं, तो सेम बच्चे भी वैसे ही बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं वो शायद कम हो जाते हैं उनके ऑफ द ट्रैक जाने का, और उनके अंदर भी ये डिसीजन मेकिंग, लव, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आती हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक्चुअली आपने हमारे सभी पेरेंट्स के लिए ग्रेट मैसेज दिया है। और जनरली ऐसा होता है कि जैसे ही पेरेंट होते हैं तो एज अ पेरेंट हमारे हमेशा बच्चों से एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा रहती है। बट जैसा कि आपने वेरी ट्रूली यू हैव सेड कि सिर्फ एज अ पेरेंट हमारे एक्सपेक्टेशन बच्चों से होना, दैट इज नॉट पेरेंटिंग। बट हमें ये भी जानना है कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनको हमें कब जो है स्ट्रिक्ट भी रहना है और कब उन्हें प्यार से भी डील करना है। सो दैट वाज रियली एन एक्सीलेंट मैसेज, एंड आई थिंक सो ऑल द पेरेंट्स दे हैव रिसीव्ड अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो सुरभि मैम हमारे साथ है। एक्चुअली शी इज एसोसिएटेड विद अश्विनी इंटरनेशनल स्कूल सिंस लॉन्ग। तो आज बहुत ही अच्छा प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम उनके अनुभव जो है जाने। तो मैं सुरभि मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक्चुअली मैम, बेस्ड ऑन वेरी गुड फीडबैक एंड एक्सपीरियंस अबाउट ब्राइटर माइंड्स, Ashwini International School actually is collaborating with it for cognitive skills and development, of course, and for all our students. So can you please share how it has the potential to help all the children? Over to you, Surabhi ma'am. Thank you so much, Alpna ma'am, for this beautiful question.
And I have been listening what Mr. Ritesh Rai said, and he said it beautifully कि बच्चा पढ़ लिख तो जाता ही है मतलब हमारे बच्चे को हम सब चाहते हैं कि वो एक्सेल करे, और हमें उनको एक्सीलेंस के टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स तो देने ही चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे आगे बढ़े, कैसे जो भी काम कर रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर ढंग से करता जाए, लेकिन साथ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, खुश रहे. You know, happiness is very important. That is why I was thrilled to see this theme, Rainbow of Joy, क्योंकि वो सबसे important है. हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम ऑक्यूपेशन ले रहे हैं, या जो भी हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं? तो एज पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन अपने करियर में करे, बहुत अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे, हम सब एक फैमिली की तरह खुश रहें. ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा बाद में हमको बोले कि नहीं ठीक है आज आपके पास टाइम नहीं है, बाद में हमारा बच्चा वही लर्न कर ले, बोले ठीक है बाद में जब वो बड़ा होगा और हमें जरूरत होगी वो भी बोलेगा हमारे पास टाइम नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है ना. तो करियर से बढ़ के भी जो हमारी आपस में बॉन्डिंग है वो हम कितना आगे लेके जा सकते हैं. तो ये जो हैप्पीनेस का टॉपिक अश्विनी इंटरनेशनल स्कूल ने रखा है, मैं स्कूल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस डायरेक्शन में हम सबके थॉट्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो ब्राइटर माइंड्स के थ्रू कर रहे हैं उसके दो पार्ट्स हैं. एक तो ये जो ब्राइटर माइंड्स है ये कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं हम लोग, जिससे हम बच्चों के अलग अलग न्यूरल फंक्शंस को कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे उनके ओवरऑल माइंड की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके, जिससे बच्चा जो भी कर रहा है उसको वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर सके. तो इसमें हम लोग जैसे बच्चे का फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी मेमोरी इतनी अच्छी कर सकते हैं कि ठीक है वो बहुत बार उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, देखे और उसको बहुत स्मूथली स्टडीज में अपने आगे बढ़ सके. कॉम्प्रिहेंशन कैसे इम्प्रूव करें, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि हमारे बच्चे को समझ में आए जल्दी जल्दी चीजें. मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी कैसे इम्प्रूव करें, लैंग्वेज लर्निंग की एबिलिटी कैसे इम्प्रूव करें. इन सब के अलावा लेकिन हम अपने बच्चे में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसको एक और बेहतर और एक हैप्पी क्वोशेंट उसको हम दे सकते हैं, बेहतर जिंदगी दे सकते हैं. कैसे हम उसके माइंड को उस कंडीशन में मेंटेन करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे वो जिस भी सर्कमस्टेंसेस में है, जिस भी एटमॉस्फेयर में है, वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाए, वो खुशी खुशी आगे बढ़ पाए. ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मुश्किल आई और हमारा बच्चा बहुत टॉप का डॉक्टर बन गया, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आई और वो ब्रेक डाउन हो गया. ऐसा नहीं, हमारा बच्चा हर सिचुएशन में वो सॉल्यूशन निकाल पाए और खुश रह पाए, और अपने आसपास के लोगों के साथ भी वो इतने प्यार से रह पाए कि वो एक खुशी का एक सोर्स हो जाए. उसको जो भी देखे वो बोले कि हाँ ये तो कुछ अलग है. साथ में इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन हम कैसे बढ़ाएं जिससे बच्चा बेहतर तरीके से डिसीजंस दे पाए, खुद से इनिशिएटिव्स ले पाए. पेरेंट्स कितने दिन तक धक्का मार पाएंगे कि हाँ ये करो वो करो, नहीं, ज्यादा दिन नहीं. लेकिन अगर बच्चा खुद से अंदर से वाइज होता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, ये राइट वे करने का, ये इन लोगों के साथ मुझे रहना चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स बेहतर तरीके से चूज कर पाए, वो चीजों को अच्छे ढंग से खुद से समझ पाए, तो हमारा बच्चा सेफ भी रहेगा और वो अपने आप लाइफ में आगे बढ़ेगा. तो जो बच्चों में और पेरेंट्स में बीच में रिफ्ट कब आती है, जब बच्चों को लगता है कि हाँ बार बार एक ही चीज के लिए धक्का मारे जा रहा है, पुश किया जा रहा है हमें, और पेरेंट्स की वो कभी कभी नीड बन जाती है, क्योंकि क्या करें अगर धक्का नहीं मारे तो बच्चा कर नहीं रहा है. तो जो आजकल हम देख रहे हैं कि वो जो एक रिफ्ट हो जा रही है, जैसे सपोज रितेश सर ने टीवी देखने का एग्जांपल दिया कि बच्चा 3 घंटे 4 घंटे टीवी देख रहा है, अब आप फोर्सफुली नहीं हटा सकते उसे, कुछ उसको उसके अंदर से हमें वो विजडम इनेबल करना पड़ेगा जिससे वो खुद से वो इनिशिएटिव ले कि हाँ ठीक है मम्मा पापा ये 1 घंटे मुझे टीवी देखना चाहिए, उसके बाद मैं ये क्रिएटिव करता हूँ. अदरवाइज वो बच्चा पूछेगा अब मैं क्या करूँ. पेरेंट्स तो बहुत बार सॉल्यूशन नहीं दे पाते. तो कैसे वो एक जॉय फैक्टर हम बढ़ाएं. तो ये जो ब्राइटर माइंड्स प्रोग्राम्स हैं वो न्यूरो साइंटिफिक रिसर्चेस और स्टडीज से लिए गए हैं, और इसमें बहुत सारी फन फील्ड एक्टिविटीज के साथ, गेम्स के साथ, न्यूरो साइंटिफिक इंटरवेंशंस, मेथड्स के साथ हम बच्चों की
जो ब्रेन की, माइंड की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उस पे काम करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो मैंने बोला कि मैं उस टॉपिक को देख के ही बहुत खुश हो गई, क्योंकि जो हमारे सिस्टम में, एक मैंने बताया कि 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये जो न्यूरो साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं इसके थ्रू हम कैसे बच्चे में वो इम्प्रूवमेंट लाएं, प्लस जो उसका सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे वो जॉयफुल एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर पाए, वो हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए जिससे हम एक खुशी खुशी आगे बढ़ पाए, हमारा बच्चा खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो इसकी पूरी एक न्यूरो साइंटिफिक स्टडी इसके भी विंग है, हैप्पी जेनेटिक्स बोलते हैं जिसको। तो हमारे सिस्टम में, जैसे आपने क्वेश्चन भी डाला कि जिंजर जूस है हमारा हैप्पी केमिकल या डोपामीन है, तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे हैप्पी केमिकल्स हैं, जैसे डोपामीन है। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं तो अपने आप डोपामीन रिलीज होता है। तो मैंने सोचा था कि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आप एक हफ्ते 2 हफ्ते ये करके देखिए कि ठीक है कुछ एक अच्छा करेंगे इंटेंशनली कि अपने परिवार वालों के लिए, और देखते हैं कि क्या होगा। बच्चे भी हमारे जो अटेंड कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि ठीक है आप सिर्फ 1 ग्लास पानी दो मम्मा को, पापा को, अपनी फैमिली में, है ना, करके देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट इस पूरे हफ्ते 2 हफ्ते तक कि कैसा जाता है ना। तो डोपामीन है एक हमारा हैप्पी केमिकल। एक ऑक्सीटोसिन है, जब हम किसी को भी थोड़ा पैम्पर करते हैं, उसको हक करते हैं, उसको प्यार करते हैं, अपनी केयर शो करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो भी एक हैप्पी केमिकल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट इस पूरे वीक कि ठीक है हम सुबह उठते ही कुछ अच्छी बात बोलेंगे एक दूसरे को, है ना, कुछ इस अपने ऑक्सीटोसिन को हिट देने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी को हम कुछ अच्छी बात बोलेंगे, हक करेंगे, इस तरह का कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं पूरे हफ्ते। थर्ड जो हैप्पी केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा कैसे रिलीज होता है, जो हमारी बहुत सारी जो हैप्पी थॉट्स होते हैं, पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, बहुत सारा जब हम अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, जब हम कुछ अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हमारा सेरोटोनिन और एंडोर्फिन एक और हैप्पी केमिकल है वो रिलीज होता है। तो हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ठीक है हम 10-15 मिनट पूरी फैमिली एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, तो कुछ योगा टेक्निक करेंगे। आज हम आपको अभी एक रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस देंगे, आप ट्राई करो कि ठीक है हम पूरी फैमिली बैठ करके सुबह एक साथ रिलैक्सेशन अटेंड किया करेंगे, और आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक करो, और आप जरूर ये फीडबैक हमको भेजो कि आपको कैसा लगा। और मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। ब्राइटर माइंड्स में हम लोग करीब अभी 25,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग कर चुके हैं, और इतने एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके, हर लेवल पे हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी अडॉप्ट किया है, जिसमें गवर्नमेंट उनको फंड करती है ये प्रोग्राम करने के लिए। तो हर लेवल पे करके जो हमें एक ओवरऑल चेंज दिख रहा है ना, वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अल्पना मैम, आप जब भी हमको टाइम स्लॉट होगा तो हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो आप मुझे बताना। तो आई वुड लाइक टू गिव दिस एक्सपीरियंस टू अवर पेरेंट्स, इवन अवर किड्स, they can attend. Let's see, because Ashwini International is already doing relaxation techniques for kids, and we have been seeing changes in our dear kids. So we will do this experiential session with our parents and kids now as well. Thank you so much. Sure ma'am. Thank you so much, Surabhi ma'am. Wonderful, you have shared your experience. एक्चुअली मैं तो कहना चाहूंगी कि शायद पेरेंट्स के जितने भी वो थे, यानी दुविधा थी, आपने सब सॉल्व कर दिया है। क्योंकि ऐसा है कि पेरेंट्स को जो गाइडेंस की जरूरत रहती है, क्योंकि आजकल के उसमें कैसा है, सभी पेरेंट्स सिर्फ करियर के प्रोस्पेक्ट के पीछे ही भाग रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट उसकी जिंदगी खुशनुमा होनी चाहिए, इसके बारे में इस एंगल पे कोई नहीं सोच रहा है। तो शायद आपके इस शेयरिंग के बाद जो है सब जो है पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम रियली सही मायने में हमारे बच्चों की खुशियां चाह रहे हैं, या हमें कुछ और करने की भी जरूरत है। So thank you so much, Surabhi ma'am, for sharing your experience and giving all this guidance to all our parents. Okay, now we have some couple of questions for our other guest. So now I hand over the mic to Navneet Miss. Navneet Miss, kindly carry forward. Yes, thank you ma'am. तो चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और मेरा सवाल है मिस देवश्री वर्मा से। देवश्री मिस, आप हाल ही में हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ी हैं।
इसे एक शिक्षक के रूप में आप अपने अंदर किस तरह का बदलाव महसूस करती हैं और ये डेली लाइफ में आपके किस प्रकार मदद करता है? सबसे पहले तो नवनीत मिस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं सबका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस अद्भुत कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने अभी हार्टफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस अभी हाल में ही शुरू की है, लेकिन इस 1 साल में ही मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे हैं। जैसे कि मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, काफी चीजों में जो मेरा सोचने का नजरिया था, तुरंत रिएक्ट कर जाना या चीजों को मैं जज करती थी, मैं देख रही हूँ कि ये सब चीजें काफी हद तक चेंज हुई है। और ये सारे बदलाव मेरे अपने अंदर हुए हैं, अपने व्यक्तित्व में मैं ये सब सारे परिवर्तन देख रही हूँ। और इसके साथ ही स्कूल में भी बच्चों के साथ जो पहले जो मेरा उनके साथ में जो मेरा पहले रिलेशन होता था, ऐसा था कि अगर किसी बच्चे ने कोई शैतानी की या कुछ ऐसी हरकत की जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो उस पर मेरा सडन रिएक्शन आता था, तुरंत चीखना, चिल्लाना या फिर उनको डांटना, ये सब नॉर्मल वे में होता था। लेकिन अभी हाल के दिनों में मैं ये नोटिस कर पा रही हूँ कि अब मैं पहले उस चीज को समझने की कोशिश करती हूँ, मैं पहले उससे बात करती हूँ, पहले मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ। और कहीं ना कहीं मेरा जो उससे बात करने का एंगल होता है वो ऐसा होता है कि मैं अपने आप को उसके जगह पे रख के सोचती हूँ, अच्छा किस सर्कमस्टेंसेस में इसने ये गलती की होगी। तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम मीन्स मैं और मेरा स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में बातचीत नॉर्मल हो पाती है, हम लोग खुल के एक दूसरे से बात करते हैं। और जो हमारा टीचर और स्टूडेंट वाला जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली होता चला जाता है। और फिर उसके बाद मतलब जो पहले वाली समस्या थी कि वो उसको डर लगता था मुझसे, या मुझसे वो कहने में जो कुछ हिचकता था, या फिर मैं भी एकदम इस मूड में रहती थी कि हाँ इससे तो गलती होगी ही, तो ये सब चीजें एक साइड हो गई। फिर हमारे बीच का जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता चला गया। तो मैं देख रही हूँ कि अभी मतलब इन कुछ दिनों में ये सारे चेंजेस मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं चीजों को पॉजिटिवली लेती हूँ। जो कुछ आसपास चीजें हो रही है, भले अभी का सर्कमस्टेंसेस है, भले बहुत निगेटिव है, पर उसमें भी मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालने की, ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाती थी मैं। लेकिन अब ये सब चेंजेस मुझ में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरे घर में भी मेरे बच्चे हैं या अपनी फैमिली के साथ जो मेरा तरीका था, तुरंत एंगर या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सब कुछ मेरे अंदर अच्छे से जो एक नॉर्मल इंसान में होता है वो सब कुछ था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी आती हैं, वर्क प्रेशर है या कोई भी ऐसी बात है जो कि जिस पर कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए था या मैं करती थी पहले, अब उसमें है कि मैं उस पर पहले सोचती हूँ, समझती हूँ, और उसके बाद जो स्टैंड लेकर फिर जब उस पर बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीका भी सही होता है। और उसके बाद जो मैं डिसीजन लेती हूँ एक बैलेंस्ड वे में, तो वो डिसीजन भी सही निकल के आता है। तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन से मुझे लग रहा है कि इस 1 साल में मैंने काफी कुछ सीखा है और लंबा रास्ता तय करना है। और मुझे लगता है कि मैं जब इसको और आगे प्रैक्टिस करूंगी तो इसके बहुत सारे लाभ मुझे मिलेंगे। अभी तक मुझे इससे जो कुछ फायदा हुआ है उसको मैं बहुत हद तक अपने जीवन में उतार पा रही हूँ और काफी कुछ सीख रही हूँ। नवनीत मिस। Thank you, Devashri Miss, for sharing your beautiful thoughts with us, your experience with us. And I know बहुत ही बढ़िया बदलाव आ रहा है आप में हार्टफुलनेस के जरिए, और हम सभी यही चाहते हैं, यही बदलाव हम में आए। Am I correct? So let's move forward. And now I want to ask question to Miss Prajakta Ohal. Being a student, how well are you able to handle the pressure of academics after practicing meditation?
Hello everyone, I'm Prajakta Uwar, a student from Ashwini International School. I have been practicing meditation since last year. Since then, I have observed great changes in myself and especially in my academics. Previously, I used to get stressed, worried, and anxious about my examinations, especially during my maths paper. I used to give up my food and sleep, but now I'm calm and confident about myself. Before every examination, I give myself a thought that I need to be calm and positive. This is only possible because of meditation. Meditation have helped me all the way through in handling my academic pressure. Thank you. Thank you, Prajakta, for sharing your thoughts and your experience, what you are experiencing. And yes, so now I think we all know that heartfulness meditation creates an entirely new focus in life. Now, let us move forward. I now request our today's esteemed guest, Mrs. Surbhi ma'am, to take meditation for all of us. Thank you, ma'am. So, dear parents and children, let us experience this, and believe me, when you will be practicing it regularly, you yourself will see that, you yourself will observe that change that we are talking about. And take it as a science experiment. Don't take it because we are offering you are attending. No, take it as a science experiment, and you are experimenting on yourself, and the result of experiment will also be you only. हाँ, तो चलो करके देखते हैं अपने खुद के ऊपर ये प्रयोग कि कैसा लगता है. Are you ready? Okay. So now you can sit back relaxed. Keep your back straight, neck straight. Now we are going to experience immense potential, infinite love and joy inside our heart only. Close your eyes. We are going to experience something beautiful and relaxing. Close your eyes. If you are wearing spectacles, you can take it out. Be comfortable. We will start relaxation with the toes. Wiggle your toes and feel them relaxed. Relax your feet, your ankles. अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला के पैरों की उंगलियों को, पैरों के तलवों को और एड़ियों को बिल्कुल आराम की स्थिति में महसूस कीजिए. Now feel that a healing energy from Mother Earth is coming up, relaxing your lower legs, your knees, your thighs. ऐसा महसूस कीजिए कि पृथ्वी से एक उपचार करने वाली ऊर्जा आपके ऊपर की तरफ, पैरों में ऊपर की तरफ आती जा रही है और आपके पैरों के निचले हिस्से, घुटनों और पैरों के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह रिलैक्स करती जा रही है. Now feel that the healing energy is further moving up, circulating in your entire back and relaxing it. ऐसा महसूस कीजिए कि वो उपचार करने वाली ऊर्जा और ऊपर की तरफ आते हुए आपकी पूरी बैक में सर्कुलेट होती जा रही है और आपकी बैक को रिलैक्स करती जा रही है, आराम की स्थिति में लाती जा रही है.
धीरे से अपना ध्यान अपने पेट की मांसपेशियों की तरफ लाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि वो भी पूरी तरह गहराई से रिलैक्स होती जा रही हैं। अब अपने चेस्ट एरिया की तरफ अपना ध्यान लाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपका चेस्ट एरिया भी बहुत गहराई से रिलैक्स होता जा रहा है। इट्स रिलैक्सिंग डीपली एंड कंप्लीटली। धीरे से अपना ध्यान अपने कंधों की तरफ लाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके कंधों से सभी तनाव और कसाव पिघलता जा रहा है और आपके कंधे पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। All stress, all tensions in your shoulders are simply melting away, and your shoulders are completely and deeply relaxed. अब ऐसा महसूस कीजिए कि आपके बाइसेप्स, एल्बोज और फोरआर्म्स भी पूरी तरह रिलैक्स होते जा रहे हैं। वो ऊर्जा उसमें संचारित होती जा रही है, पूरी एनर्जी सर्कुलेट होती जा रही है और आपके हाथों का ऊपरी हिस्सा, कोहनी और निचला हिस्सा पूरी तरह रिलैक्स होता जा रहा है। अब अपनी हथेलियों और हाथों की उंगलियों को भी रिलैक्स हो जाने दीजिए। धीरे से अपना ध्यान अपने गर्दन की तरफ लाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके गर्दन की भी सभी मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स होती जा रही हैं। All muscles in your neck area are completely and deeply relaxed. Feel it deep in your heart. अब अपने जबड़ों, गालों, कानों और नाक को भी पूरी तरह रिलैक्स महसूस कीजिए। सारी फेशियल मसल्स महसूस कीजिए कि बिल्कुल लाइट और रिलैक्स होती जा रही हैं। ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी आंखें बिल्कुल हल्के से और धीमे से बंद हैं और रिलैक्स होती जा रही हैं। अब ऐसा महसूस कीजिए कि आपका माथा, फोरहेड पूरी तरह रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे से अपना ध्यान अपने माइंड की तरफ लाइए
और ऐसा महसूस कीजिए कि उसमें से सभी तनाव और कसाव निकलता जा रहा है. All stress, all tensions are simply going away, relaxing your mind completely and deeply. Observe how relaxed you are from head to toe. खुद को ऑब्जर्व करिए कि आप सिर से पैर तक कैसे पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं. धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ लाइए. Very slowly bring your awareness to your heart. और ऐसा महसूस कीजिए, एक सूक्ष्म विचार, एक हल्का सा विचार दे दीजिए कि आपके हृदय में ही ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, जो आपका ध्यान अंदर की तरफ आकर्षित करता जा रहा है. इस एक सूक्ष्म विचार, जेंटल सजेशन के साथ आराम से हम लोग सब बैठेंगे. अंत में जब इसको खत्म करना होगा तो मैं आपको दैट्स ऑल बोलूंगी. तब तक आप अपनी आंखें आराम से बंद करके इस एक सूक्ष्म सजेशन के साथ, सूक्ष्म सुझाव के साथ कि हमारे हृदय में ही ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, जो हमारा ध्यान अंदर की तरफ आकर्षित करता जा रहा है. इस एक सूक्ष्म विचार के साथ, सूक्ष्म सुझाव के साथ आराम से बैठेंगे. ध्यान शुरू करते हैं.
दैट्स ऑल। अब अपनी धीरे से और हल्के से आंखें बंद रखते हुए ऑब्जर्व करिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। और जब भी आप बाहर आने को तैयार महसूस करें खुद को, धीरे से और हल्के से अपनी आंखें खोल दें। अब आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं, एक मेंटल नोट बना सकते हैं या कहीं किसी डायरी में, अगर आपके पास कुछ डायरी आप मेंटेन करते हैं तो उसमें लिख सकते हैं। Thank you so much for attending. Thank you. Thank you, Surbhi ma'am. I now request Alpana Miss to present vote of thanks. Thank you, Navneet Miss. This was indeed a wonderful journey celebrating the science of happiness. But as we all know, for a new beginning, we have to end up with the existing one. तो हम भी अपने कार्यक्रम के अभी आखिरी पड़ाव पे हैं। तो अपने कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव पे मैं सबसे पहले इसे सफल बनाने के लिए जिनका योगदान रहा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं तहे दिल से अपने माननीय चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, हमारे एस्टीम्ड गेस्ट्स और जो हमारे पेरेंट्स हैं और दूसरे व्यूअर्स हैं, सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस अद्भुत कार्यक्रम को संचालित करने का मौका मुझे दिया गया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। अब मैं सभी पेरेंट्स को हार्टफुलनेस द्वारा कल मनाया जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया इस अद्भुत कार्यक्रम का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं। heartfulness.org Peace Day. So let's meditate for peace and create peace. Here we have a wonderful video of Kanha Shantivanam and a message from the president of Heartfulness Institute. Revered Mr. Kamlesh Patel, lovingly called as Taji. Many people, they ask me this question, Kamlesh, what is the best quality a human being should have? Three things stands out in my heart: simplicity, purity, and humility. We are all aware of simplicity and purity, how important they are. But rarely people understand the significance of humility. In summertime, when these mangoes come up in the branches of the tree, you will see with the heavy weights of the mango, the entire branch, it touches all the soil, it touches the earth. If we didn't and still try to remain erect, it will break all the branches. In the process, the weight of these fruits will destroy the tree itself. So, we bow down with the weight of growth, with the weight of progress. We should not become so erect and arrogant. If you lack this humility, you cannot be labeled as human being. What else do we learn from nature? Take for example cows. What do they return in the process of taking grass, water, and some nutrients? They give you milk. And ultimately, she sacrifices her life. But the intake of this cow was just grass and water. Nature is very generous. Everything around us, they take the minimum. Input is minimum and their output is maximum. What about us? We take the best from nature. Our intake is always the best. What should be our output?